revered Professor Sadanandji Sapre, erstwhile National Coordinator of All India Pragya Pravaha, my seniors and associates at Loko Pragya. I am Professor Somshubra Gupta, State Coordinator Loko Pragya. My topic is Loko Pragya. I am indeed feeling a bit nostalgic because I am a common component to both Indian Institute of Technology Kharagpur and Loko Pragya. I am a class of 97 from IIT Kharagpur. আমি বাংলায় বলবো, কিন্তু এখানে ইনহাউস আইআইটি খড়গপুর এবং লোকপ্রজ্ঞার সবার মধ্যে প্রত্যেকে বেঙ্গলি কনভার্সেন্ট নন, এই জন্য আমি ইংলিশ এবং হিন্দিতে রিপিট করব। আমরা প্রথমেই লোকপ্রজ্ঞার উদ্দেশ্য, শর্তাবলী, কার্যাবলী এবং সাংগঠনিক স্ট্রাকচার এটা নিয়ে একটু কথা বলে দেব। প্রজ্ঞা প্রবাহ একটি সর্বভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ। প্রজ্ঞা প্রবাহ ইজ এ অল ইন্ডিয়া ইন্টেলেকচুয়াল ফোরাম। হয়ে যাচ্ছে অলরেডি। প্রজ্ঞা প্রবাহ ইজ এ অল ইন্ডিয়া ইন্টেলেকচুয়াল ফোরাম। এরই দক্ষিণবঙ্গ শাখার নাম হচ্ছে লোকপ্রজ্ঞা, এবং মানে দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং মধ্যবঙ্গ। বঙ্গীয় শাখার নাম হচ্ছে লোকপ্রজ্ঞা। তিনটি প্রান্ত: লোকপ্রজ্ঞা উত্তরবঙ্গ, লোকপ্রজ্ঞা দক্ষিণবঙ্গ এবং লোকপ্রজ্ঞা মধ্যবঙ্গ। প্রজ্ঞা প্রবাহের আচ্ছা, এই প্রেজেন্টেশনে আমার টক এবং কন্টেন্ট মিলিয়ে 4টি ভাষায় আছে: বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি এবং সংস্কৃত। প্রজ্ঞা প্রবাহের প্রতীক চিহ্নে বোধবাক্য, ক্যাপশন ইন এমব্লেম: জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতম, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 7ম অধ্যায়, জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ। এবং প্রজ্ঞা প্রবাহের ক্যাপশন ইন এমব্লেম, প্রতীক চিহ্নে বোধবাক্য: জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতম, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 7ম অধ্যায়, জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ। ইবং তুতে গুহ্যতে আমং প্রবক্ষ্যামান্য সুভবে জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতম যজোগাত্তা মোক্ষসে শুভে। লোকপ্রজ্ঞার প্রতীক চিহ্নে বোধবাক্য: অখণ্ড মণ্ডলাকারম, গুরু প্রণাম মন্ত্রের অংশ। অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যক্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। প্রজ্ঞা প্রবাহ তথা লোকপ্রজ্ঞা দুজনেরই উদ্দেশ্য, দুটি সংস্থারই, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ, রিএস্টাবলিশমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ভ্যালু সিস্টেমস in the modern concept. লোকপ্রজ্ঞা নিঃশর্ত নয়। লোকপ্রজ্ঞা ইজ নট আনকন্ডিশনাল। প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে অ্যাপলিটিক্যাল, সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক। কোনো সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি এসব নয়। রাজনৈতিক মতাদর্শ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু লোকপ্রজ্ঞা তার জায়গা নয়, তার জন্য অন্যান্য সংস্থা আছে। পজিটিভ, ইতিবাচক, কোনো রকম সমালোচনামূলক ক্রিটিক্যাল থটস অ্যাকসেপ্টেবল নয় লোকপ্রজ্ঞায়। অ্যাপলিটিক্যাল, পজিটিভ, অরাজনৈতিক, ইতিবাচক। আরো কন্ডিশনস আছে: সময়ানুবর্তিতা, সময় সম্পর্কে সচেতন থাকা, ফিক্সড টাইম, ইন টাইম অ্যান্ড ফুল টাইম বাট নট এক্সটেন্ডেড টাইম, ঘড়ি ধরে সমস্ত কিছু চলা, মেনে চলা। বিষয়ানুবর্তিতা, ফিক্সড টপিক,
যে প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে এবং তৎসংলগ্ন প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক থাকা, রেলিভেন্ট, নো ননসেন্স, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে চর্চা, আলোচনা, ব্রেনস্টর্মিং বিষয়ের ওপর, বিবিধ বিষয় হতে পারে কিন্তু সবার অভিমুখ এক, ভারতবোধ, রাষ্ট্রভক্তি, নেশনস ফার্স্ট। আর নিজেকে এবং চলভাসকে শান্ত রাখা, একাগ্রতা, অ্যাটেন্টিভনেস। যখনই কোনো আলোচনা হবে সমস্ত অ্যাটেন্টিভনেস বিষয়ের ওপর ফোকাস করা। উদ্দেশ্য এবং শর্তাবলী হলো এখন কার্যাবলী। প্রবুদ্ধের সংজ্ঞা কি? প্রজ্ঞা প্রবাহ তথা লোকপ্রজ্ঞার কনসেপ্ট অনুযায়ী প্রবুদ্ধ মানে এই নন যে খুব ভালো মতো এস্টাবলিশড, তারা তো আছেনই। প্রবুদ্ধ মানে যিনি ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞান চর্চা করেন, যার স্টাডি হ্যাবিটস আছে, মননের মধ্যে আছেন, অধ্যয়নের মধ্যে আছেন, এটাই প্রবুদ্ধের সংজ্ঞা লোকপ্রজ্ঞার অনুযায়ী। অর্থাৎ স্টাডি হ্যাবিটসের মধ্যে থাকতে হবে, পড়াশুনোর মধ্যে থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, ক্রিয়েশন অফ নলেজ, ন্যারেটিভস, বিভিন্ন রকম বই পত্র, পড়াশুনো, পাবলিকেশনস, রিসার্চ, গবেষণা এর মধ্যে থাকা, অবশ্যই ন্যাশনালিস্ট ফিলোসফির ওপর বেস করে। লোকপ্রজ্ঞার মাতৃশক্তি, ছাত্রশক্তি, বিভিন্ন ইউনিটস আছে, মাদার্স ইউনিট, স্টুডেন্টস ইউনিট। Regularly participate offline or online on those units programs. It's mandatory to be a member of Lokoprogya to participate, to explore knowledge, to expedite knowledge, to create knowledge. লোকপ্রজ্ঞার যে স্পিরিচুয়াল ভিজিট, বিভিন্ন টেম্পলস, প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ, হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস, পেট্রিয়টস, তাকে আমরা বলি অনুভব দর্শন, তাতে পার্টিসিপেট করা। যেমন এখানে আমাদের আজকে হচ্ছে আইআইটি খড়গপুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অনুভব দর্শন। প্লেসেস অফ হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড ন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স, সেটাই পার্টিসিপেট করা। চারটে বললাম আমি। অখিল ভারতীয় স্তর থেকে অনুষ্ঠান হয় লোকমন্থন, তাতে অংশগ্রহণ করা। আরও যা যা অখিল ভারতীয় প্রজ্ঞা প্রবাহ থেকে আমাদের যে আমন্ত্রণ আসে এবং আরও যে যে অনুষ্ঠান থাকে তাতে অংশগ্রহণ করা। এই হলো সংক্ষেপে লোকপ্রজ্ঞার উদ্দেশ্য, শর্তাবলী, কার্যাবলী। প্রজ্ঞা প্রবাহ, লোকপ্রজ্ঞা, ক্রিয়েশন অফ নলেজ, তথ্য, ইনফরমেশন, জ্ঞান, নলেজ, প্রজ্ঞা, উইজডম, এটা মাথায় রেখেই কাজ করা। সম্পর্কে কথাবার্তা ইমেজ অনেক বেশি বলবে। কিছু টাইম কনস্ট্যান্ট থাকায় আমাদের একটু কাট শর্ট করতে হবে। লোকপ্রজ্ঞার অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার একদম চর্চা কেন্দ্র দিয়ে শুরু, একাই অর ইউনিট, ইট ইজ টার্মড ইকাই অর ইউনিটস। চর্চা কেন্দ্র সেটা কোনো শহরের উপর ভিত্তি করে হতে পারে, গ্রাম, শহর, মফস্বল টাউন, অথবা প্রেফারেবলি কোনো ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউশন আছে সে জায়গায়, অথবা কোনো বিষয় ভিত্তিকও হতে পারে কোনো একটা ইউনিট। শৈক্ষণিক এবং সাংগঠনিক দুরকম ইউনিট হয়। যে কোনো ইউনিট, চর্চা কেন্দ্র বা ইউনিট, তার উপরে থাকে গড়, সেটা ব্লক ভিত্তিক বা ডিস্ট্রিক্ট ভিত্তিক হতে পারে। তার উপর থাকে প্রান্ত, প্রদেশ, আমরা উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ তিনটে প্রান্তের নাম বললাম। তার ওপর থাকে ক্ষেত্র এবং তারপরে সর্বভারতীয় পর্যায়ে। মাননীয় শ্রী অরবিন্দ দাসজি আছেন আমাদের ক্ষেত্র সংযোজক, প্রফেসর
সদানন্দজি সাপড়ের কথা আমি আগেই বললাম, উনি আর্টসওয়াইল অল ইন্ডিয়া কোঅর্ডিনেটর অফ প্রজ্ঞা প্রবাহ এবং উনি এনআইটি ভূপালের প্রফেসর রিটায়ার্ড। যে কোনো ইউনিটের পাঁচজন, পঞ্চশক্তি বলি আমরা প্রজ্ঞা প্রবাহের টার্মসে, কোঅর্ডিনেটর, সংযোজক, সহ সংযোজক, কোঅর্ডিনেটর, কোঅর্ডিনেটরই মেন থট প্রসেস, তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে অখিল ভারতীয় এবং প্রান্ত থেকে যে ক্ষেত্র প্রান্ত থেকে যা বিষয় আগ্রহ প্রকাশ করা হবে সেগুলোকে ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা, এবং সহ সংযোজক সমস্ত বিষয়ে তাকে সাহায্য করবেন এবং মূলত শৈক্ষণিকের দিকগুলো দেখবেন সহ সংযোজক। মাতৃশক্তি, মা, বোন, কন্যা, তাদেরকে এই ভারতবোধ বা রাষ্ট্রভক্তি, নেশনস ফার্স্ট, তাতে জারিত করা এবং অথবা তাদের দ্বারা জারিত হওয়া, এটা থাকবে মাতৃশক্তি প্রদানের লক্ষ্য প্রমুখের। ছাত্র শক্তি প্রমুখ, আমাদের পরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হচ্ছে ছাত্র, যাদের মধ্যে আপনারা এখানে অনেকেই আছেন এবং তারা সংবর্ধিত হবেন। আমাদের এই অনুভব দর্শনের প্রধান লক্ষ্য কিন্তু স্টুডেন্টসদের ফেলিসিটেট করা। তার আগে লোকপ্রজ্ঞা কি সেটা সম্পর্কে জানলে আপনাদের সুবিধাই হবে। সংযোজক, সহ সংযোজক, মাতৃশক্তি, ছাত্রশক্তি এবং ব্যবস্থা অথবা সম্পর্ক প্রমুখ। যেমন এখানে এই এত বড় একটা ইভেন্ট হচ্ছে, ব্যবস্থার দায়িত্বে যারা আছেন তারা করছেন, তাদের ভূমিকা অত্যন্ত, তারা সামনে ফোরফ্রন্টে হয়তো থাকেন না, কিন্তু তাদের ভূমিকাই মুখ্য, এবং তারা সবার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেন। আজকে যে বিশিষ্টজনেরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, এই প্রোগ্রামের পর কি হবে, আবার পরবর্তী প্রোগ্রাম না, তার মধ্যের দিনগুলো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। আমরা ডিটেলিং এ যাচ্ছি না, আমাদের গ্রুপে যারা আছেন তারা ইতিমধ্যে এগুলো পেয়েছে। এটা অখিল ভারতীয় প্রজ্ঞা প্রবাহের, মানে আমরা তো পশ্চিমবঙ্গ শাখা, এখানে মেনশন করা আছে ইস্ট জোন, তাতে 5টা প্রান্ত, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 3টে পড়ছে, আন্দামান নিকোবর, সিকিম আর নর্থ ওড়িশা, সাউথ ওড়িশা, একসঙ্গে মোট 5টা প্রান্ত। তো এরকম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কি আছে তার ডিটেলস এখানে আছে। দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত, মধ্য ভারত, পশ্চিম ভারত, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম, কালকে বক্তারা অধিকাংশই বলেছেন। আমাদের বিভিন্ন চর্চা কেন্দ্রের চর্চার কিছু নিদর্শন, ছবি সমগ্র বাংলা জুড়ে দেখলে হয়তো মনে হবে লোকপ্রজ্ঞা সত্যি একটা ইভলিউশন। আমরা 2018 সালে শুরু করি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি থেকে, বেলুড় মঠ, তারপরে আমাদের 5 বছর সম্পূর্ণ হয়েছে, 6 বছরের দিকে আমরা এগোচ্ছি। 18 নভেম্বর 2018 জৌগ্রাম, হ্যাঁ আমি জানি, অলরেডি কথা হয়েছে, আরামবাগ, বর্ধমান, দুর্গাপুর, হরিপাল, বহরমপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, পানাগড়, শিমুরালি, কামারপুকুর, তারকেশ্বর, সিউড়ি, উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, দক্ষিণেশ্বর, হাওড়া গ্রামীণ, ধুলাগড়, বারুইপুর, দেউলপুর, আমতা, বসিরহাট, বারাসাত, মেদিনীপুর, হলদিয়া, কাঁথি, মঠচণ্ডীপুর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জায়গায় লোকপ্রজ্ঞার আজকে যেটি হচ্ছে, এটি 18তম অনুভব দর্শন।
অনুভব দর্শন কি আমরা ইতিমধ্যেই বললাম, আ জার্নি টুয়ার্ডস স্পিরিচুয়াল পারস্যুট in search of, it's a devotional tour in the places of national and historical importance. খড়গপুর আইআইটি এটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, এখানে আজকে আমরা অনুভব দর্শনে আছি, এটা 18তম। আমাদের শুরু আমরা যেটা ইতিমধ্যেই বললাম হয়েছে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটিতে, আরকেএম ভিউ 18 নভেম্বর। পূজ্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ এর আশীর্বাদে আমরা আরও আমাদের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর শ্রী জে নন্দ কুমারজি ছিলেন এবং আরও বিশিষ্ট ভাইস চ্যান্সেলর সেটা ছিলেন, তাদের মাধ্যমে আমরা পথ চলা শুরু করি। এই হচ্ছে 17টির লিস্ট, আজকে 18তম, মানে গতকাল আজ যে যে অনুভব দর্শনগুলি আমরা করেছি। লোকপ্রজ্ঞা অনুভব দর্শন ঠিক এর আগে আমাদের হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি দুর্গাপুরে, সেখানে ডিরেক্টর, আর্টসওয়াইল ডিরেক্টর, তিনি আমাদের অ্যাড্রেস করেছিলেন। এই বিভিন্ন অনুভব দর্শনের শুরু এটা কামারপুকুরে, জয়রামবাটি কামারপুকুর দুটো পর্বে হয়, জুলাই আগস্ট 2023। এটা বঙ্কিম ভবন, ইন দ্য বার্থ প্লেস অফ আওয়ার ন্যাশনাল অ্যান্থেম বন্দে মাতরম, যেখানে উনি লিখেছিলেন, যেখানে এর উৎপত্তি, সেই উৎপত্তি স্থলে আমরা অনুভব দর্শন করি বঙ্কিম ভবনে। বঙ্কিম ভবনে যে রিসার্চ সেন্টার আছে তার গবেষকরা এবং পদাধিকারীরা আমাদের এই অনুভব দর্শন অ্যাড্রেস করেছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আর্টসওয়াইল এডুকেশন মিনিস্টার উনি প্রেজেন্ট ছিলেন। আমরা এর ডিটেলিং এ আর যাচ্ছি না, কারণ একটা ভিডিও আছে, সেই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ডিটেলটা দেখব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড়গম্ভীরা মন্দির, এই বিভিন্ন অনুভব দর্শন আমরা 18টি লিস্ট দেখালাম, এইগুলো সেই অনুভব দর্শনের গ্লিমস। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সংঘে আমাদের অনুভব দর্শন, এটি ছিল প্যান্ডেমিকের আগে আমাদের লাস্ট অনুভব দর্শন। আমাদের বেশ কিছু অনলাইন প্রোগ্রাম, লাইভ নয়, অনলাইন অ্যাভেলেবল, এখানে এই প্রোগ্রামগুলোর লিঙ্ক সব দেওয়া আছে। যে কোনো সময় আপনারা ওয়ান ক্লিকে, আমাদের ইতিমধ্যেই সার্কুলেট হয়েছে বিভিন্ন গ্রুপে, সেখানে সেই লিঙ্কগুলো আছে, আপনি যে কোনো সময় ক্লিক করলেই পাবেন। যে কোনো লিঙ্ক যদি আপনি ক্লিক করেন সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও খুলে যাবে আছে, সেটা আপনি দেখতে পারেন। এই ধরনের কোনো ভিডিও, রাইট, আপনি গুগল বা ইউটিউবে প্রেফারেবলি লোকপ্রজ্ঞা এবং রিতম এই দুটো কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলেই আপনাদের এই ধরনের ভিডিও, রাইট, বুঝতেই পারছি এই ধরনের বলার অর্থ কিছুই নয়, সেটা হচ্ছে ভারতবোধ এবং রাষ্ট্রভক্তি বিষয়ক। ভারতের হৃদস্পন্দন শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ। আমি সুতপা বর্ষা, লোকপ্রজ্ঞা কল্যাণী সদস্য। এগুলো সবই ভিডিও লিঙ্ক বিভিন্ন প্রোগ্রামে। শ্রীরামচন্দ্র, এই প্রোগ্রামসগুলো আপনারা যে কোনো সময়, ওয়ান টাচ অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ অল দিস প্রোগ্রামস, যে কোনো সময় টাচ করে ক্লিক করে আপনি দেখতে পারেন। আমরা ডিটেলিং এ যেতে পারছি না, এখানে অনুভব দর্শনের ভিডিওগুলো ইউটিউবে অ্যাভেলেবল, যে কোনো সময় অনুভব দর্শন বলে সার্চ করে আপনি এইগুলো পাবেন। গতকাল আমাদের ওয়েবসাইট লঞ্চ হয়েছে, মুক্তেশ্বরদা, অনুরাগ। You will find our interface, YouTube already discussed, WhatsApp we have a huge activities, এবং আমরা ফেসবুকেও অ্যাভেলেবল। সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনারা এগুলো যে কোনো সময় দেখতে পাবেন। আদার্স যা যা প্রোগ্রাম আছে, আমি সময়াভাবে ডিটেলে যেতে পারছি না। আদার্স প্রোগ্রামের মধ্যে বিশেষত আমরা ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্সের প্রোগ্রামগুলো ইনভাইটেড হই এবং অ্যাটেন্ড করি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার and erstwhile গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, রাইট নাও দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, Dhankarji, various programs. লোকমন্থন is a প্রজ্ঞা প্রবাহ প্রোগ্রাম অল ওভার ইন্ডিয়া, সেখানেও আমাদের পার্টিসিপেশন। বসুদেব পুত্র, জগৎগুরু
আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেটা বলেছি যে নলেজ ক্রিয়েশন, গবেষণা করা, বইপত্র পাবলিশ করা, তার কিছু নিদর্শন। অর্জুনকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত করে এবং সেখানে তিনি বলছেন পরিশেষে একটা conclusion, বীজং মাং সর্বভূতানাং বৃদ্ধিপাত যেটা আমরা বলেছিলাম আরেকবার মনে করিয়ে দেয়, এগুলো আমাদের বিভিন্ন ইকাই চর্চা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন গড, হয়তো রিডেবল নয় কারণ স্ট্রাকচারটাই মেন, ইউনিটস, গড, প্রান্ত, রাজ্য, ক্ষেত্র, এবং এর উপর অল ওভার ইন্ডিয়া, যেটার 45টা প্রান্ত আমরা দেখালাম। একটা ভিডিওর মাধ্যমে আজকের এই বক্তব্য আমরা শেষ করব। তেজস্বী অনেক তেজস্বী আচ্ছা ঠিক আছে, সময়াভাবে আমরা এটা দেখাতে পারছি না আর কি। ভিডিওটা আমরা যে কোনো সময় পরে দেখতে পারি আমাদের ইউনিটে। আমরা আমি আবার আমাদের সর্বপ্রথম প্রজ্ঞা প্রবাহ তথা লোকপ্রজ্ঞার ডক্টর মনাঞ্জলি উপস্থিত সবাইকে, তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুরের সদস্য অথরিটি, প্রফেসরস, স্টাফস, রিসার্চার্স এবং লোকপ্রজ্ঞা থেকে আগত বিভিন্ন মেম্বার্স এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং গার্জেনদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। সোম সুব্রতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কালকের সকাল থেকে আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমরা এই 3 দিনের কার্যক্রম, কালকের কার্যক্রমের একটা আলাদা মাহাত্ম্য ছিল। আমরা কাল থেকে যার জন্য অধীর অপেক্ষা করছি, যার বক্তব্য শুনবো বলে, এবং তারপরে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা আছে, কিন্তু সেই প্রোগ্রামের আগে আমরা যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর অপেক্ষা করে আছি, হ্যাঁ, তো আমরা তাকেই আজকের এই মুহূর্তে মঞ্চে ডাকবো। আমি মাইক হ্যান্ডওভার করছি পরবর্তী মঞ্চ সঞ্চালনা করার জন্য। আমাদের এই পর্যায়ে সাংগঠনিক যে অনুষ্ঠান, সেখানে এতক্ষণ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন চললো। এরপর আমরা মঞ্চে আমাদের অতিথি যারা আছেন বিশিষ্ট, তাদেরকে মঞ্চে আহ্বান করছি। ডক্টর সদানন্দ দামোদর সাফরেজি, ভোপাল এনআইটির প্রাক্তন প্রফেসর, এনআইটি ভোপাল মধ্যপ্রদেশের, এবং আমাদের অখিল ভারতীয় টলির অন্যতম সদস্য। আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়াটিক স্টাডিজের ডিরেক্টর মাননীয় ডক্টর স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে। এবং আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডক্টর প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক অধ্যাপক ডক্টর বিপ্লব লৌহ চৌধুরী মহাশয়কে আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি। আমরা আপনারা গতকাল থেকে যারা আছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ অতিথি আমাদের পরিচিত, আমাদের কাল থেকেই রয়েছেন। শুধুমাত্র আমি একটি বিশেষ পরিচয় আপনাদের কাছে করিয়ে দিই। ডক্টর অমিত দে মহাশয়, উনি কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল, যেখানে প্রায় ৭,৫০০-এর মতো স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কলেজ, যে কলেজে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ পরীক্ষার সেন্টার, একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেন্টার। পাশাপাশি স্যার ওনার যে কলেজ, সেখানে লোকপ্রজ্ঞার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তো উনি লোকপ্রজ্ঞার যে আমাদের আগের বিশেষ লোকপ্রজ্ঞাকে স্নেহ করতেন, ওই কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাননীয় কাঙালচন্দ্র দাস মহাশয়, উনি স্নেহধন্য, উনি ওনাকে পেয়েছেন। তো ওনাকে আজকে আমরা পেয়ে আমরা গর্বিত। ওনাকে আমাদের মধ্যে আহ্বান জানাচ্ছি, ওনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তো এরপর আমরা লোকপ্রজ্ঞার আজকের যে অনুষ্ঠান,
সেখানে চলে যাব যে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। গতকাল আমরা সময় দিতে পারিনি, উনি নিজেই স্বেচ্ছায় বলতে চাননি। ভোপাল এনআইটির প্রাক্তন অধ্যাপক এবং অখিল ভারতীয় টলির প্রজ্ঞা প্রবাহের অন্যতম সদস্য ডক্টর বিশিষ্ট লেখক, ওনার বেশ কিছু বই এনআইটির পাঠ্যের মধ্যে রয়েছে, এনআইটির বিভিন্ন ওনার যে সাবজেক্ট সেই বিষয়ের উপর। সেই ডক্টর সদানন্দ দামোদর সাপ্রেজিকে আমরা এখন আহ্বান করছি বক্তব্যের জন্য। স্যার। सबको नमस्कार। ये आवाज पीछे तक ठीक से सुनाई दे रही है क्या? बहुत ठीक। मतलब यहाँ की जो माइक व्यवस्था करने वाले हैं वे लोग पास हो गए। ये बहुत कठिन काम रहता है, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी दिखने वाली व्यवस्थाएं रहती हैं उनको सही ढंग से करना ये अत्यंत कठिन काम है। और इसलिए इस सारी मंच व्यवस्था में लगे हुए जो अपने प्रबंधक बंधु हैं उन सबको, बंधु भगिनी, उन सबको बधाई। मैंने मेरे सामने घड़ी रखी हुई है, मुझे जितना समय बताया गया है उतने समय में मैं विषय प्रस्तुत कर सकूं इसलिए रखा है। फिर भी 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं तो जिन्होंने मुझे समय बताया है उनसे और आप लोगों से पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लेता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना समय बताया गया है उतने ही समय में मैं अपनी बात कह सकूं। कल एक सत्र में मुझे बोलना था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि काफी समय हो चुका था, तो यथासंभव समय बचाने के लिए, चूंकि मुझे आज भी आपके सामने बोलना है, इसलिए मैंने ही कहा कि मैं अभी बोलना है तो मैं इस बार रह सकता है, न बोला तो चल जाएगा, कल मुझे बोलना ही है। तो इस तरह से थोड़ा समय बच गया था। लेकिन फिर कुछ कार्यकर्ताओं ने बाद में मुझे कहा कि ठीक है, आप बोले नहीं हैं और कल का विषय कोई दूसरा है, तो क्या संक्षेप में आप आज यानी कल जो बोलने वाले थे वो संक्षेप में बता सकते हैं क्या? मुझे भी ठीक लगा। कल का विषय भारतीय ज्ञान परंपरा, IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इसके बारे में मैं कुछ बताने वाला था, लेकिन पूर्ववर्ती वक्ताओं के वक्तव्यों में साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड कई बातें समाहित हो गई थी, स्वाभाविक ही है, इसलिए कल नहीं बोला तो चल गया था। लेकिन जो कहा गया कि संक्षेप में क्या बताने वाले थे, तो मैं थोड़ा सा, एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रत्येक प्रकार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इन सब क्षेत्रों में भारत का जो विचार है, भारत की जो सोच है प्रत्येक विषय में, वो सारी सोच दुनिया के अन्य लोगों की सोच के समान नहीं है। विस्तार में मैं जा नहीं सकता, लेकिन इसलिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा IKS रिलेटेड काम करना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि यहां बैठे हुए हम सब लोग इस विषय में केवल सुनना ही नहीं तो कुछ न कुछ करना चाहते हैं। एम आई राइट? भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय में केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, तो जो सुना है, अच्छा लगा है, जो मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, वो मैंने जरूर करना चाहिए, ऐसा ही हम सब लोगों का सोच है। एम आई राइट? हाँ कि ना? आवाज सुनाई नहीं दी मेरे को। हाँ, थोड़ा सा
क्या है, सुबह सुबह का समय है, जल्दी उठ गए होंगे तो कोई पीछे बैठ करके सो भी रहे होंगे, तो मैं सोने नहीं देता, तो बीच बीच में ऐसे पूछता रहूंगा। तो हमको करना है। अब करने के 2-3 प्रकार हैं। एक, मैं जिस विषय का तज्ञ हूं, जो विषय मैंने पढ़ा, जैसे मान लीजिए मैंने केमिस्ट्री विषय पढ़ा हुआ है, तो स्वाभाविक यानी इट इज पार्ट ऑफ द साइंस। तो साइंस रिलेटेड व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ भारत रिगार्डिंग साइंस एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, यह मुझे जानना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया है, इंजीनियरिंग में किया हो, साइंस में किया हो, किसी भी विषय में किया होगा, अर्थशास्त्र में किया होगा, मैंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, किस नजरिए से वो सारा विषय मैंने पढ़ा है, समझा है, तो पश्चिम की नजर से मैंने वो विषय पढ़ा है। तो मैंने पीएचडी भी किया होगा, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो भारतीय दृष्टि से नहीं पढ़ा है, वो पश्चिमी दृष्टि से पढ़ा है। तो पहले तो मुझे व्हाट इज द भारतीय वे ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, जैसे अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में भारत की क्या सोच है, यह पहले मुझे समझना पड़ेगा। और फिर दूसरा है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत इन दैट फील्ड, वो हमने कल के कई वक्तव्यों में उसके बारे में हमने सुना हुआ है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत। तो भारत की सोच, भारत का योगदान, और तीसरा और महत्व का है व्हाट आई कैन डू टुडे फॉर इट, मैं उस दिशा में कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। कि जो प्रवचन में होता है, बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रवचन में जो बातें कभी अपने जीवन में थोड़ी उतारते हैं, कौन उतारता है। तो आईकेएस रिलेटेड बातें बहुत अच्छी अच्छी हमने जान ली। अब मैंने यदि कुछ करना है तो मुझे निजी अध्ययन करना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, भारत की सोच क्या है मुझे जानना पड़ेगा, किस पुस्तक में लिखा है वो पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है मुझे जानना पड़ेगा। तो जिन पुस्तकों में वो कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, नहीं तो पश्चिमी देशों के विद्वानों के ही नाम हम लोग लेते लेते, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, अरे पाइथागोरस से पहले उल्लेख हो चुका है, पाइथागोरस से पहले कितने अपने महापुरुष थे, उनमें से एक है बोधायन, उन्होंने वो सारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ हम लोग कह देते हैं 3 लॉज। अरे अब भारत के लोगों ने उसका न्यूटन से कहीं पहले आविष्कार किया हुआ है कि नहीं, तो मैंने जानना किस पुस्तक में लिखा है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो सिलेबस की किताबें पढ़ी है उसमें यह सब नहीं है, उसमें न्यूटन ही रहेगा, उसमें पाइथागोरस ही रहेगा। तो मुझे ऐसी पुस्तकें प्राप्त करनी पड़ेंगी, ये पुस्तकें कहां मिलेंगी, इसकी चिंता हमको करनी पड़ती है। कल का मेरे विषय साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड था, इसलिए मैं उसके संबंध में 1-2 संदर्भ पुस्तकें मैं आपको बताऊंगा। हमको गहराई में जाना पड़ेगा, उस प्रकार की पुस्तकें प्राप्त करना, उन पुस्तकों को पढ़ना, और उस विषय के संबंधित 4-5 जो लोग होंगे उन्होंने साथ में बैठ करके थोड़ा गहराई में पढ़ना और चर्चा करना। तो साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक बहुत अच्छी पुस्तक मेरे देखने में आई है, मैं यहां लाया भी हूं, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, ये पुस्तक है। ये अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, मुझे लगता है कि यह बंगाली में भी अनुवाद हो चुका होगा, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया, अंग्रेजी में भी हो चुका है। इसमें विज्ञान की जितनी शाखाएं, विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अप्लाइड साइंस, तो विज्ञान से संबंधित जितने विषय होंगे तो उसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड रहेगा, आर्किटेक्चर रिलेटेड रहेगा, इवन कृषि विज्ञान भी है तो कृषि रिलेटेड रहेगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे 20-25 विषयों के चैप्टर। और उनमें जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर है,
तो केमिस्ट्री में भारत के लोगों ने क्या क्या किया हुआ है उसका व्यवस्थित वर्णन है। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कृषि शास्त्र है, हर सब्जेक्ट में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ भारत, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत। तो अब ऐसी पुस्तकें हमने प्राप्त करनी चाहिए और उनका बारीकी से अध्ययन करने वाले छोटे छोटे समूह बनने चाहिए। उन्होंने रेगुलर इंटरवल पर बैठना चाहिए, ऐसी पुस्तकें लेकर के चर्चा करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं एक बात बता करके मैं ये विषय समाप्त कर दूंगा। एक और पुस्तक है भारतीय ज्ञान का खजाना, यह भी अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हो चुका है, अन्य भाषाओं में नहीं हुआ होगा तो हो सकता है अपने में से कोई उसका अनुवाद बांग्ला में कर देना चाहिए। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें बहुत अच्छी जानकारियां हैं जो हम लोगों को नहीं होती। जैसे इसके मुख पृष्ठ में जो चित्र है, आपको दिखेगा नहीं अभी, आप लोग प्राप्त कर लेना। इसमें सोमनाथ का जो बाण स्तंभ है, सोमनाथ का मंदिर है, मंदिर का अपना स्थान है, हम दर्शन के लिए गए भी थे, लेकिन वो बाण स्तंभ देखा। वो बाण स्तंभ क्या है, एक दिशा में वो बाण वहां पर लगा हुआ है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, वो नया नहीं है। मंदिर बाद में बना होगा, वो बाण पहले से है। और वो क्या किस दिशा में है, तो उस दिशा में दक्षिण ध्रुव है और इस बाण से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, यानी कोई भी जमीन नहीं है। सीधे पानी के जहाज से उस मार्ग पर उस सीधी रेखा में हम दक्षिण ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। अब ये जानकारी, इस प्रकार का बाण लगाना, तो उन लोगों को किस प्रकार की जानकारियां रही होंगी जिसके आधार पर उन्होंने किया। तो ऐसे व्यवस्थित जानकारियां जो हम लोगों को बता सकते हैं और उन्हें अच्छा लगेगा, तो ऐसी पुस्तकों का हम लोगों ने अध्ययन कर। इन पुस्तकों में जैसे फिजिक्स का चैप्टर है, तो फिजिक्स के चैप्टर में किन किन संदर्भ ग्रंथों का उपयोग किया वो पूरी लिस्ट दी हुई है, हर चैप्टर में लिस्ट दी हुई है। तो यदि हम केमिस्ट्री का एक डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो हमको उस चैप्टर में जो 8, 10, 15 रेफरेंसेस दिए हैं उन रेफरेंसेस को प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कहते हैं, केवल एक कार्यक्रम में IAS का व्याख्यान सुन लिया और संतुष्ट हो गए, इससे पर्याप्त नहीं है। तो जिस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं उस क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें कौन सी है वो जानकारी लेना, वे पुस्तकें प्राप्त करने की व्यवस्था करना, उस प्रकार का अध्ययन करने वालों का छोटा सा समूह बनना चाहिए। 5-6 साथ रहेंगे, 100-200 नहीं रहेंगे। नियमित अंतराल में उन्होंने बैठ करके उस प्रकार की पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करना और भारत को विकास करने की दृष्टि से यदि उसका उपयोग होना है तो 2 बातों को हमको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा व्यवस्था वाले कम से कम चर्चा करके यदि लोगों को बिठाएंगे तो सत्र में व्यवधान कम होगा। कम से कम बोल करके उन्हें बिठाइए या उनको बैठने दीजिए, सत्र के बाद जो समझाना है वो समझाइए। वो 2 बातें हैं। पहली बात, जो पुराना है वो एज इट इज नहीं लेना है। कई बार ये हम लोगों की भी गलती हो जाती है कि पुराने जमाने में ऐसा था वैसा ही आज हमको करना है। इसका सूत्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बताया हुआ सूत्र है। तो ऐसी पुस्तकें, उनका अध्ययन इत्यादि करने के बाद भारत को ऊंचा उठाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो करना है, तो पहली बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वह सूत्र बताया हुआ है कि पुरानी बातों को अपनाना तो है लेकिन एज इट इज नहीं। तो उनका सूत्र है प्राचीन बातों को युगानुकूल बनाकर अपनाना, यानी आज के समय में वह उपयुक्त हो इस प्रकार के उसमें परिवर्तन भी करना।
जैसा उस समय था एज इट इज आज करना ऐसा नहीं है। तो हमारी बातों को युगानुकूल बनाना, यह पहला सूत्र है। तो हमारी बातें जाननी पड़ेंगी, इसलिए यह सब अध्ययन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में यदि उसको इंप्लीमेंट करना है तो आवश्यक परिवर्तन करते हुए इंप्लीमेंट करना, इसमें कुशलता लगती है, वो प्राप्त करना, यह पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है, क्या दुनिया भर में यदि उस दिशा में कोई अच्छी बातें हुई हैं तो आंखें बंद कर लेना? नहीं, वो तो विदेशी है, वो तो उधर का है, वो उधर का है, हम तो भारत के हैं, हमें कुछ नहीं देखना, हमारे पास सब कुछ है। ऐसी सोच रखना क्या? ऐसी सोच नहीं रखना। अपने यहां पर एक सूत्र है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वता। क्या अर्थ है इसका? कि अच्छी बातें दुनिया में जहां भी हो वो देखना, अपनाना, स्वीकार करना। लेकिन इसमें दीनदयाल जी ने जो दूसरा सूत्र बताया है कि दुनिया की बातों को भी अपनाना, लेकिन एज इट इज नहीं, उन्हें भारत के लिए अनुकूल बनाकर अपनाना। तो अपनी प्राचीन बातों को युगानुकूल बनाना और दुनिया भर की बातों को भारतानुकूल बनाना, तब जाकर के अपना देश उन्नति करेगा। दुनिया से भी सीखेंगे, अपने पूर्वजों से भी सीखेंगे, लेकिन इन दो बातों का, तो ऐसी सोच वाले लोग हम लोग हैं। तो इस प्रकार के साहित्य का थोड़ा सा अपने पास उपलब्धता सुनिश्चित करना, छोटे छोटे विषय अनुसार समूह बनाना, उन्होंने नियमित अंतराल में बैठ करके उन ग्रंथों पुस्तकों के आधार पर थोड़ी सी गहराई में चर्चा करना, उसमें से निष्कर्ष निकालना, उसमें क्या परिवर्तन होना अपेक्षित है उसके बारे में चर्चा करना। यह जो जिसको हम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कहते हैं, यह किए बिना हम जो आईकेएस का केवल रट यदि लगाते रहेंगे तो काम नहीं होने वाला। इसलिए थोड़ा सा इस विषय को मैंने आपके सामने रखा है। अब आधा समय तो इस बात में निकल गया, अब आधा समय आज के सत्र के लिए, तो 15 मिनट बचे हैं, तो 15 की जगह 20 तो हो सकता है। कौन है जिन्होंने मुझे 20-30 मिनट बताए थे? अलाउड है क्या? 20-22 लग सकता है आज का विषय लेने के लिए। मैं कंप्रेस करने का प्रयास करूंगा। अभी हमने लोक प्रज्ञा के माध्यम से प्रज्ञा प्रवाह अपने वंग प्रांत में, यानी इन तीनों प्रांतों में क्या क्या कर रहे हैं, ये व्यवस्थित रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा है। हम लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्राप्त भी कर सकते हैं, उनसे मिल जाएगा आपने। अब देश भर में इस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। थोड़ा संक्षेप में मैं बताऊंगा और कुछ उदाहरण बताऊंगा। एक तो मुख्य बात अपने को ध्यान में आई गई है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, उनका भी देश के उत्थान में, देश के विकास में योगदान होना चाहिए। जैसे कोई धनवान है, क्या अपेक्षा रहती है? तुम्हारे पास बहुत धन है, ठीक है, तुम्हारे परिवार के काम आता है, सब अपनी जगह पे है, लेकिन तुमने समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जिसमें धन लगाना पड़ता है। कोई सेवा प्रकल्प चलता है तो अपेक्षा यह रहती है ना कि जो धनवान है उसने अपने धन में से कुछ धन का उपयोग समाज के लिए करना चाहिए। यह अपेक्षा है कि नहीं है? यह होती है, और ऐसे लोग रहते हैं समाज में। तो धनवानों से यह जैसी अपेक्षा है, उनके पास धन अधिक है, वो धन दे रहे हैं। जिनके पास बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, तो उस बुद्धि के आधार पर मैं अपनी उन्नति तो करता हूं। जैसे मैंने इंजीनियरिंग में पीएचडी तक अध्ययन कर लिया, ऊपर वाली की दी हुई बुद्धि है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। और इस पीएचडी के आधार पर मुझे अच्छी नौकरी मिली, अच्छा खासा मैं कमा लेता हूं। ये मेरा फायदा है, मेरे परिवार का फायदा है।
क्यों है? मेरी जो इंटेलेक्ट है, मेरी जो बुद्धि है, उसके कारण से ये हुआ है। तो जैसे धनवान से अपेक्षा है कि कुछ धन का उपयोग उसने समाज हित के लिए, देश हित के लिए भी करना चाहिए, वैसे ही जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे ये अपेक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारी बुद्धि का बहुत उपयोग होता है, कुछ बुद्धि का उपयोग देश और समाज के लिए भी करो। तो प्रज्ञा प्रवाह इस दिशा का काम है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी बुद्धि का कुछ न कुछ उपयोग देश और समाज के लिए होना चाहिए। किस प्रकार से उपयोग होता है, आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं। अब ऐसे लोग समाज में प्रत्येक वर्ग में होते हैं कि नहीं होते हैं? केवल बुजुर्ग लोग ही बुद्धिमान होते हैं क्या? युवक बुद्धिमान नहीं होता है क्या? केवल पुरुष ही बुद्धिमान होते हैं, महिला में बुद्धि नहीं होती है क्या? तो सब प्रकार के लोगों का समावेश हो जाए इस प्रज्ञा प्रवाह के इस बौद्धिक यज्ञ में, इसलिए अपने यहां पर जैसे प्रबुद्ध लोगों का थोड़ा सा एक काम रहता है, कुछ नई बातें खोजना, तो शोध आयाम एक रहता है। फिर युवा आयाम है कि जैसा मैंने बताया कि केवल बुजुर्ग लोग ही बुद्धिमान नहीं होते हैं, युवकों में भी बुद्धिमान होते हैं, युवतियों में भी बुद्धिमान होते हैं। तो युवा आयाम, तो ज्यादा से ज्यादा युवक भी अपने से जुड़ने चाहिए, रिसर्च करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने चाहिए, शोध आयाम है। महिला आयाम है कि महिलाओं की भी ज्यादा से ज्यादा इस दृष्टि से अपना वंग प्रांत बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसे मध्य भारत प्रांत अच्छी स्थिति में है, इधर तेलंगाना प्रांत अच्छी स्थिति में है, गुजरात प्रांत अच्छी स्थिति में है महिलाओं के कार्य की दृष्टि से। वैसे अपना बंग प्रांत भी अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी जुड़नी चाहिए, युवक भी जुड़ने चाहिए, रिसर्चर्स भी जुड़ने चाहिए, बड़ी आयु के लोग, तो सब प्रकार के लोग, पुरुष और महिलाएं अपने इस काम में जुड़े, इस दृष्टि से है। एक और आयाम है, यानी शोध आयाम, महिला आयाम, युवा आयाम के साथ एक और आयाम है, और वो आयाम है प्रचार आयाम। आज के जमाने में प्रचार का अपना महत्व है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए संघ भी जो प्रचार में विश्वास नहीं रखता है, व्यक्तिगत संपर्क में विश्वास रखता है, ये व्यक्तिगत संपर्क काम करते हुए इसको बंद नहीं किया, लेकिन संघ ने प्रचार विभाग शुरू किया है कि नहीं किया है? 90 के दशक में शुरू किया अपने संघ ने, प्रचार विभाग होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में आवश्यक है, आज के समय आवश्यक है। तो हम जो कर रहे हैं उसकी जानकारी समाज के लोगों को होनी चाहिए, तो उनमें से कुछ लोग उस जानकारी के आधार पर अपने से जुड़ सकते हैं, इसलिए अपने यहां प्रचार विभाग भी है। तो ऐसे इस दृष्टि से सब प्रांतों में काम चलते हैं। मैं 2-4 सैंपल्स बताता हूं। प्रचार के अंतर्गत एक और विषय आता है प्रकाशन। तो कई प्रांतों में प्रज्ञा प्रवाह के माध्यम से प्रकाशन होता है, अपने प्रांत में भी होता है, लेकिन कुछ प्रांतों का बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए जो पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत है, उस पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत में हर 3 महीने में वो एक पत्रिका निकालते हैं, लेकिन बड़ी स्तरीय पत्रिका रहती है और विषय केंद्रित रहती है। ऐसे ही विदर्भ में भी उन्होंने शुरू किया है, तेलंगाना में भी शुरू किया है। तो विदर्भ का वे एक विशिष्ट विषय लेकर के अंक निकालते हैं। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने अंक निकाला था, जो विमर्श का विषय आता है, विमर्श के हम जानते हैं 12-15 विषय हैं, उस प्रत्येक विषय से संबंधित उसमें आर्टिकल रहे, तो बड़ा स्तरीय प्रकाशन रहता है। इसके आधार पर इस विमर्श के जो अंक है, उन्होंने थोड़ा सा इसका ज्यादा प्रचार किया, ज्यादा जगह भेजा, ज्यादा जगह बेचा, उन्होंने अपनी व्यवस्था की,
और इस अंक के कारण से अनेक नए लोग जो अच्छी सोच वाले हैं और अभी तक प्रज्ञा प्रवाह से नहीं जुड़े थे, ऐसे बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवक विदर्भ के प्रज्ञा प्रवाह, जो वहां भारतीय विचार मंच इस नाम से चलता है, उससे वो लोग जुड़ गए। एक बहुत बड़ा कारण है यह विमर्श केंद्रित उनका जो विशेषांक निकला था, लेकिन उसका इस प्रकार से उसका उपयोग करना पड़ता है। मैंने उदाहरण के लिए बताया, ऐसे कुछ अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार के अच्छे प्रकाशन होते हैं। इनके माध्यम से भी नए लोग अपने से जुड़ते हैं। जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नए लोग जुड़ते हैं, प्रचार के माध्यम से नए लोग जुड़ते हैं, वैसे ही प्रकाशन के माध्यम से भी नए लोग अपने से जुड़ते हैं। तो उस दृष्टि को रखते हुए हमको यह काम करना। युवा आयाम जरा इसलिए महत्व का है कि मोटे तौर पर यह माना जाता है कि आज के युवा को देश और समाज की कोई चिंता नहीं है, उसको केवल पर्सनल करियर की चिंता है, ऐसा माना जाता है। वस्तुस्थिति है क्या? वस्तुस्थिति ये नहीं है। मेरा चूंकि देश भर में और विदेशों में भी घूमना होता है, तो प्रत्यक्ष देखी हुई बात बता रहा हूं, केवल कहीं पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा। यदि उनके सामने अच्छा विषय व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, वो अपने साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। बेंगलोर में एक शिविर रखा, उसमें सभी संगठनों का, प्रज्ञा प्रवाह का भी सही योगदान था, अन्य संगठनों का भी योगदान था, युवा केंद्रित था। युवक और युवतियां दोनों के लिए उन्होंने 3 दिन का शिविर रखा। 3000 से ज्यादा युवक युवतियां आए, 3 दिन पूरे उस अनुशासन में रहे, जिनके बारे में कहा जाता है ये लोग अनुशासन में नहीं रह सकते, ये लोग एक जगह पर 20 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह जिनके बारे में कहा जाता है। वहां के बौद्धिकों में 1-1 घंटे तक यह 3000 युवक युवतियां पिन ड्रॉप साइलेंस रखते हुए बौद्धिक सुनने वाले थे। तो युवकों के सामने यदि विषय सही ढंग से रखा जाता है, वे भी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। तो अपने युवा आयाम इस दिशा में थोड़े से उस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करनी पड़ती है, जैसे भोपाल में लोग करते हैं, मध्य भारत में पुस्तक समीक्षा करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठते हैं, पुस्तक समीक्षा करते हैं, अच्छी पुस्तक लेते हैं, एक व्यक्ति पढ़ता है, बारी बारी से सबको अवसर मिलता है, वो पढ़ता है और उस पर चर्चा वो कंडक्ट करता है। कोई अधिकारी चर्चा कंडक्ट नहीं करता है, उन्हीं में से 1 युवक 2 युवक तय कर लेते हैं, अगली बार दूसरे युवक युवती को अवसर मिलेगा, वो चर्चा कंडक्ट करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा होती है। हेरिटेज वॉक करते हैं कि कोई हेरिटेज स्थान है तो वहां तक पैदल जाएंगे और वो उस हेरिटेज स्थान का महात्म्य क्या है वह उनको बताया जाएगा। तो केवल वाहन में बैठ करके गए उसमें वो बात नहीं आती है, लेकिन जब पैदल जा रहे हैं, कभी वो साइकिल से एक बार उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आजकल साइकिल कोई नहीं चलाता है, तो साइकिल चलाना 25 किलोमीटर साइकिल चलाना यही अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। साइकिल चलाने की आदत ही नहीं है। उन्होंने हेरिटेज वॉक था, लेकिन वो साइकिलिंग किया 25 किलोमीटर दूर जाकर के, उस स्थान पर जाकर के फिर वहां कार्यक्रम होते हैं। इसका एक युवाओं पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ऐसे नए नए कार्यक्रम क्या हो सकते हैं कि उनको अपने निकट लाना और अपनी बातों से जोड़ना। महिला आयाम, तो महिला आयाम वहां पर फिर से मैं भोपाल का ही बता, मैं भोपाल में रहता हूं, वहां के उदाहरण थोड़ी ज्यादा मालूम है। वैसे मैंने नागपुर का भी उदाहरण बताया, तेलंगाना का भी बताया, पुणे का भी बताया। भोपाल में अपने केरल स्टोरी नाम का सिनेमा आया था, क्या था? कश्मीर फाइल और केरल स्टोरी। तो केरल स्टोरी, अब देखिए आजकल तो बड़ी सरलता से डाउनलोड हो जाता है, घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं। उन्होंने सोचा, वहां के महिला आयाम ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सिनेमा हॉल में जाकर के वह पिक्चर देखेंगे, घर पे देख सकते हैं। तो करीब 50-60 महिलाएं एक साथ गई और वहां पर उन्होंने एक साथ पिक्चर देखा।
संयोग से मैं था तो मुझे भी उन्होंने बुला लिया था। तो बाद में बाहर निकले तो एक जगह पर सब इकट्ठा आ गए और उस सिनेमा में जो बताया गया उससे हमने क्या सीखना चाहिए इस पर चर्चा प्रारंभ कर दी। तो 50-60 महिलाओं के अलावा अन्य 200-300 श्रोता भी उस कार्यक्रम में शामिल हो गए और अपने विचार उन्होंने सुने कि केरल फाइल, ये केरल स्टोरी इस फिल्म के माध्यम से जो बताया गया है तो हमने इसमें से क्या सीख लेनी है। इस पर जो चर्चा हुई, करीब 20-25 मिनट चर्चा हुई, उसमें 200-300 लोग शामिल हो गए और सब कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए। तो ऐसे नए नए प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करनी पड़ती है। अपने अधिकारियों के प्रवास होते हैं तो मेरे प्रवास में तो अक्सर ये लोग करते हैं। 5 मिनट और है, आप लोग चिंता मत करना, मैंने घड़ी रखी हुई है। आपको धन्यवाद, इन्होंने मेरे को घड़ी दी है। तो रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में विषय रखना, उनके बीच में केवल रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाएंगे। संख्या की हमेशा चिंता नहीं करना कि 200-300 संख्या होनी चाहिए। 15 रिसर्च स्कॉलर्स है, उनके सामने विषय रखेंगे। इतने प्रभावित होते हैं क्योंकि अपन रिसर्च में क्या विषय रखते हैं, अपन रखते हैं कि भाई जो भी रिसर्च करोगे उसके तुम्हारे रिसर्च टॉपिक चूज करने के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। उसमें से एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रेजेंट डे नीड ऑफ माय सोसाइटी, व्हाट इज द प्रेजेंट डे नीड ऑफ माय कंट्री। ये सोच रिसर्च स्कॉलर की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए व्हाइल चूजिंग द रिसर्च टॉपिक, कि भाई मेरे देश की, आज मेरा देश किस दिशा में कमजोर, मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी में मेरा देश कमजोर है, तो मैं यदि उस विषय से संबंधित रिसर्च करने वाला हूंगा तो मेरा रिसर्च टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण देगा उनको। तो ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स को इस प्रकार की दृष्टि की व्हाट इज द प्रेजेंट डे नीड, रूरल टेक्नोलॉजी है, सिविल मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके सामने रूरल टेक्नोलॉजी के विषय रखते हैं। हम कहते हैं कि सम इनोवेशन इन द रूरल टेक्नोलॉजी, जो आज वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वे लोग कुछ काम कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार करना। इस प्रकार का टॉपिक हम हमारे रिसर्च के लिए या प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं रख सकते, यह दृष्टि देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से युवक हो, रिसर्चर्स हो या महिलाएं हो, इन सब के बीच में और फिर इन सब का प्रचार और फिर प्रकाशन के माध्यम से भी प्रचार, तो इस प्रकार की गतिविधियां देश भर में चलती है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, चूंकि देश भर में घूमना होता है, इतना पॉजिटिव रिस्पांस रहता है, यानी तथाकथित रूप से वैचारिक दृष्टि से अपने घोर विरोधक है, ऐसे लोग भी अपने से जुड़ना प्रारंभ होते हैं। मैंने देखे हुए, समय की कमी है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा सकता हूं। तो प्रज्ञा प्रवाह का काम करना है, ने केवल कार्यक्रम किया, भाषण सुन लिया, बहुत बढ़िया, अब अगले कार्यक्रम में आएंगे, यहां तक सीमित नहीं। तो थोड़ा सा गहराई में जाना, थोड़ा अध्ययन करना, थोड़ा सा समान सोच वाले, समान कैटेगरी वाले लोगों ने नियमित अंतराल में बैठते हुए उस प्रकार के ग्रंथों का गहराई में अध्ययन करना, उसके निष्कर्ष निकालना, इनके आधार पर कुछ लिखना, कोई आर्टिकल लिख सकता है, धीरे धीरे कोई किताब भी लिख सकता है। तो इस प्रकार से दीज आर द इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस जो हम जैसे लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने आपको दिया है देश भर का, ग्लिम्स ही है। आप लोग जानते हैं जो हिमनग होता है उसमें 8-10% हिस्सा केवल समुद्र के ऊपर रहता है और 90-95% हिस्सा समुद्र के नीचे रहता है। मैंने ग्लिम्स दिया है तो ये 5-6% अब है। समुद्र के नीचे कितना होगा आप लोग स्वयं कल्पना कर सकते हैं। 3.5 मिनट अधिक लगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। सबको नमस्कार। कृतज्ञता माननीय डॉक्टर सदानंद दामोदर सापरे जी के, उनी भोपाल एनआईटीर प्राक्तन अध्यापक, आमादेर अखिल भारतीय कार्यकर्ता। तो आमरा এই অধিবেশনের পর আমরা যে
রত্নগর্ভা মাতৃ সহ কৃতিদের পরিবারকে আমরা সম্বর্ধিত করব এই মঞ্চ থেকে। তার জন্য আমাদের মঞ্চটার একটু রেডি করতে হবে, সাজিয়ে নিতে হবে। তার জন্য 5 মিনিটের একটা ব্রেক আমরা দেব। যাদের একান্তই প্রয়োজন কেবলমাত্র তারাই বাইরে যাবেন।